ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 2 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਨਵੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਚਾਹੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਿਰ ASI ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਨ 2011 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
सभा संगतां कुछ दिन साढ़े तो विश्व के सरकार जो सरदार हरभजन सिंह जी जिन्हों की याद अंदर आप सभा संगतां सेवा के चरणों में अरदास बेनती करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मुख्य कारण साडा इकट्ठा होने का यही है। पातशाह जी वचन करते हैं, असी सच्चे बहुत कमांदे अंतमा पारावार, हर कृपा करके बख्श लो हम पापी बड़ गुनाहगार। कि जीव को जाने अनजाने में जल्द यात्रा करते हैं, बेअंत भुला बुझाया कर दिया ने, यही मालिक की बख्श लेना। संपत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, देव सजन सीसरिया जो मुझे सैन सोने। की बेनती करने वास्ते उस चीज की गवाही करने वास्ते आप सबका कथन हुए, क्योंकि मौत एक अटल सच्चाई है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी किसी को भी स्पेयर नहीं इसको किया। पातशाह कहते ने सबना मरना आया विछोड़ा सबना, पूछो जाए सियाने अपने दल के नाम। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव सतगुरु सच्चे पातशाह जी सोट राग का पहला विचले करते हैं कि सारे जीवन ने अपने समय के दौरान इस संसार को चले जाना। जे मालिक ने कौन का सबब बनाया, ये जानता भी कोई ना कोई कारण जरूर पड़ जाता है। बस सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं सब ना मरना आया विछोड़ा सब ना, पूछो जाए सियाने आगे मिलन के नाम। जिन मेरा साहिब विसर है वडड़ी बेदन करना, जिन्होंने जीवन को उस परमात्मा की याद भुल जाती है, रब भुल जाता है, उन्होंने जीवन को बहुत बड़ा घाटा पेगा संसार में आके। क्योंकि ये मनुखा जन्म सानू प्राप्त होया है, ये बार बार मिलने वाला नहीं। 84 लाख जोड़े के सर्वोत्तम योग ये है मुक्त भाषण। मारू राघवेंद्र पातशाह जी वचन करते हैं 84 लाख जोग सुभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चुकै सो आए जाए दुख पाएगा। कि जेड़ा जीव इस मनुखा जीवन की बारी हाल के चला जाए, दोबारा का कोई पता नहीं कि मिलना कि नहीं। पर सतगुरु सच्चे पातशाह ये गल जरूर करते हैं कि जदों मनुख इस संसार से आउंदा है कि उदों ही विछोड़ा है, कि जदों इस संसार तो 20-50 साल 100 साल की आयु भोग के वापस जाता है, उदों ही विछोड़ा। पातशाह कहते हैं जमन मरण वड्डा विछोड़ा, मिलसै जग सुभाई। जदों इस संसार के जीव आया कि परमात्मा के नालों विछोड़ा पैंदा है। गुरु अमरदास पातशाह जी आनंद साहिब जी की बाणी अंदर कृपा करते हैं, लिख सुटकी लगी कृष्णा माया अंदर बताया। कि परमात्मा की खेद है कि मात के गर्भ अंदर ये जीव उस परमात्मा का सिमरन करता है उठा लड़किया होया पर काम सीधा कर रहा है उठा मात के गर्भ अंदर, पर परमात्मा का सिमरन कर रहा है, काम सीधा कर रहा है। कि जदों इस संसार में आया कि ने चलना सीधा शुरू किया, पर कर्म जेड़े ने कई बार उल्टे हो जाते हैं, जो करना चाहिए वो अस नहीं कर पाते। पातशाह कहते ने दे दे घर गए कहे ना को आओ बैठ आदर सुन दे। पातशाह कहते फिर ये अवसर चले ना हाथा, कहते दोबारा नहीं मिल सकता, दोबारा तो कोई गारंटी नहीं कि कितना समा लग जाए। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कृपा करते हैं पावन बाणी अंदर कि फिरत बहुते जुग हारे मानस दे ले। इस मनुखा जन्म को प्राप्त करने वास्ते पातशाह कहते हैं जुगों का समा लग सकता है। पता नहीं कितने जुगों के विचर के फिर ये मनुखा जीवन प्राप्त होगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, कोई ना पारे बार, जो बल पर आके कोई गिराए बहुत ना लगी रात।
ये दोबारा नहीं प्राप्त होता। जिस तरह एक फलदार पौधे तो फल पक के धरती से डिग जाए, ये दोबारा उस पौधे नाल अटैच नहीं होता। उस तरह साडा जीवन है कि जो एक बार प्राप्त हो गया दोबारा का कोई पता नहीं मिलना। असी इस जन्म के रोज पातशाह जी का आसा राग का बचन रहराज साहब जी की बाणी अंदर पढ़ते तो सुनते हैं। पातशाह कहते हैं भई प्राप्त मानुख दे प्रिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बरिया, अवर काल तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये मनुखा जन्म तेनू रब दे नाल मिलाप करने वास्ते मिले। भई प्राप्त मानुख दे प्रिया, गोविंद मिलने की ये तेरी बरिया, अवर काल तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जिथे सानू दृष्टियां को मालिक ने कि लोड़ा की पूर्ति वास्ते कोई ना कोई किरत बख्शिश की है, उन्होंने करना कि उहदे नाल एक उत्तम काम जिहड़ा सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर। एक उत्तम कर्म ये भी करना है कि असीं उस परमात्मा को जिन्हें सानू पंज भौतिक शरीर की बख्शिश की ते इहनूं चलण वास्ते श्वासा रूपी सानू धन बख्शिश किया है, उस मालिक को भी याद करना है, उसका सिमरन भी करना है। जे ये कर्म कर लवांगे जग तू आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज घर महल पाऊँ सुख सहज, बहुत न होए गुरु तेरा। इन्हीं बेनतियां दास जी को करना जी। अखियां जपियां तपियां जिन नाम जपया वंड छकिया, देख चलाई ते गवाही देख के आन बिठ कीता, बिना प्यारियां सजियारियां दी कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। तिना सिखा सिखनिया ने धर्म हित शीश दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी के साथ स्वासा नाल निभाई, तिना दी कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी। प्रथमाएं सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, जित आवे उनका सबका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ दर्शया रहा, देग तेग फतेह व्रत की बैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना श्रदान नाम दाम। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां झंडे गुंगे, जुगो जुगया टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची, मत दा रखा आप वाहिगुरू दे अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जी श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निवाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निउटियां दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरू जी। पवित्र चरण पास अरदास बेनतियां जोदड़ियां हन, गुरु गरीब नवाज सतगुरु जी जे हजी लिखे आते हुक्म कमाई। कल्याण नानका सत्य उठी जाई दे मन वाक्यों अनुसार सरदार हरभजन सिंह राम जी दे भेजे समाप्त विचार सन बख्शिश कीती शासन की पूंजी नूं भोगदे जीवन बसर करदे हां। जीवन यात्रा पूरी करदे हां सतगुरु जी पिछले दिन आप जी दे भाणे दे विच अकाल चलाना कीता सतगुरु जी। संसार विच रहिंदे हां, जीवन यात्रा करदे हां, अनेकां ही भुल्लां हो गईयां ने, होईयां भुल्लां बख्श देने, अपने चरणों विच निवास देना आसरा देना, आवागमन तो मुक्त करना सतगुरु जी। उपरंत परिवार वालों सके सबदियां वालों सतगुरु जी आप जी दी पवित्र बाणी रबी बाणी तुर्की बाणी आई तिन सकते चिंत मिटाई दे आश्रय ले
गृह विखे पवित्र बाणी के श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए समाज जी की बख्शिश हुई निर्विघ्नता सहित भोग पाई समाप्ति हुई। वो ग्रंथ आप जी की पवित्र हाजूरी के इलाही बाणी के कीर्तन हुए, गुरमत की कथा हुई, विचार हुई, सतगुरु जी सब चली सेवा निभाते हैं। आप जी के बच्चों तो अनेक ही भुलां हो गई ने, हुई भुलां बख्श देनी, अगे वास्ते समत बख्शनी। गुरबाणी शुद्ध स्पष्ट पढ़न का, कीर्तन करन का, गुरबाणी की कथा विचार करन का बल बख्शना, सोझी बख्शनी। आप अपने दरों घरों दात बख्शनी। बड़ी सुनी गुरबाणी का प्रभाव संगतां दे हृदय ते रसाउणा नाम दियां गुरसिखी जीवन दियां दातां बख्शे सतगुरु जी। विछड़ी आत्मा अपने चरणों के विच आसरा देना, आवागमन तो मुक्त करना, पिछे परिवार सगे संबंधियां कुटुंबियां बच्चियां के सिर ते मेरा भड़े हथ रखना, भाणे विच चलण दे, रजा विच चलण दी समर्था बख्शनी। नाम बाणी दा आसरा बख्शना सतगुरु जीओ। आने वाले समय के विच परिवार के सिर ते मेरा भड़े हथ रखना सतगुरु जीओ। सुख शांति दीयां दातां बख्शनियां, गुरमत गुरबाणी की सोझी वाला जीवन प्रदान करना बख्शना। सदा अंग संग सहाय होना सतगुरु जीओ। बख्शिश कीतियां दातां दे विचों कड़ा प्रसाद दी देग आप जी दर हाजर दर प्रवान होवे। प्रवान होया कड़ा प्रसाद आपकी साध संगत विच वरते, गुरु का लंगर हाजर है सो पी प्रवान होवे सतगुरु जीओ। भंडारे टुट वरताउने सेवक परिवार वालों गुरु घर दीयां इमारतां दे लई सेवा दे लई सतगुरु पिता जी बेअंत माया आप जी दर ते भेटा की सतगुरु जीओ। जिन्हां खजाने जो माए सो खजाने भरपूर करने, काल कंटक दूर करने, चढ़दियां कला बख्शीने सतगुरु जीओ। भुलां नूं नाम च तारदे होए अपने इलाही फरमान बख्शिश करके सिख संगतां नूं निहाल करो। अखरवादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी, सरबत दे कार्य रास करने। श्री गुरमुख प्यारे मेलो जिन्हां दे मिलदे हैं अज दा पवित्र नाम चिते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरी भाण है सरबत दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। व्यापत देखिए जगत, जाने कौन तेरी गत। सर्व की रखया करे आपे हर पत,
मानुख कर्म कमावने हौमे अंग गुबार वेरनावे सब कर्म दे नित जग छोटा संसार मानुख कर्म कमावने हौमे अंग गुबार गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा सहज जागै सहज सोवै गुरमुख अंग मुस्तत होवै मानुख भरमै संसा होवै अंतर चिंता नींद न सोवै ज्ञानी जागै समय सुहाए नानक नाम रत्या वल जाऊं पौड़ी से हर नाम ध्यावै जो हर रत्या हर एक ध्यावै एक एको हर सत्या हर एको वर्त एक एको उत्पत्या जो हर नाम ध्यावै तिन डर सट कत्या गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपया जो हर नाम ध्यावै तिन डर सट कत्या गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपया वडभागी गुरु की संगत दे विच क्योंकि वडभागी गुरु है बड़िया भागों वाला बना देंगे संगत दे विच बैठ के रुक के गुरबाणी हर दस्तीर की सरवण करके अपने जीवन को समझण का सवारण का यत्न कर रहे हैं। सो गुरु का हुक्म है खरीदा कोठे तुकन के कड़ा फिरने दड़ी निवार जो दे रद्दे गान वे गए विलाड़ विलाड़ बाबा जी शेख फरीद जी समझाते रहे भाई कोठियां के उत्ते किना को लमा दौड़ लवेगा भाज लवेगा कोठे तुकन के कड़ा लंबी दौड़ नहीं है कोठियां के उत्ते क्योंकि अंत आ जाता है। इस तरह जिंदगी है जीवन है जो गुरबाणी समझाती है जो दिल के गान से लगे तो भावे में मिले ने गभे ने दिते ने वाले बोले दे गान में गिने होते हैं बेअंत नहीं है मेरी जिंदगी के दिन श्वास गिने गिने पाए हुए गए विलाड़ विलाड़ छाला मार के निकल गए खत्म हो गए। इस करके भाई अपने जीवन के विच जो अज्ञानता की निंद्रा है उसके विचों बाहर निकलना जरूरी है। फरीदा कोठे तुकन के चढ़ा तेरे निंदड़ी निवार दो दिल ते गान ले गए विलाड़ विलाड़ सतगुरु का फरमान है गण काले सब दिवस सास में बदन कटन तिल साल जो मेरे भांडे के विच वाहिगुरु ने श्वास पाए या दिन पाए नहीं तिल मात्र ना वाधे ने ना वधने ने ते ना तिल मात्र घटने सो सतगुरु जी कृपा करो सुधी दे के सुधी दे विच शब्द का वासा होवे गुरु दे हुक्मां दा शब्द दे विच वासा होवे क्योंकि शब्द ने सुधी दे विच टिकना है। बोले बोले सारी साध संगत गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज असीं सारे इस
ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕਤੀ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਸਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਔਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ASI ਸੀਗੇ। और मैं समझदा कि जिथे रिश्तेदार पिंड के लोग सारे लोग पिंडों आए जिसे सरपंच ने बड़ा लंबा समा और पिंड के सज्जन आए ने, रिश्तेदार आए ने। उत्थे बहुत बड़ी गिनती के सर्विंग के रिटायरी पुलिस अफसर इतने आप मिले हैं, संस्कार से भी मिले सी। सो मैं समझदा कि इसको पता लगता है कि सार हरभजन सिंह जी ने पुलिस डिपार्टमेंट के अपना प्यार पाया, क्योंकि अज उन्होंने जिन्होंने भी काम किया वो उन्होंने याद करते हैं। सो ये गुण होंगे ने चंगे व्यक्ति के, वो जाने तो बाद लोग उन्होंने गुणों को याद कर, अपने बीते हुए समय को याद कर। छोटी जी जिंदगी है, इस जिंदगी में जितना प्यार बढ़ लो, जितना सत्कार बढ़ लो, उतना ही थोड़ा है। मैं समझदा कि जो आदमी 100 साल भी जीवे तो जी एक्टिव लाइफ है मसा 30-35 साल की है। वो जिस हिसाब से भी है, मजदूरी करता है, खेती करता है, अफसर लगा है, व्यापार करता है, जितना वो अपने आले दुआले लोगों के वाले प्यार बढ़ेगा, लोग उन्हें जो मान सत्कार करेंगे, उन्हें याद रखेंगे। सो अज आप सारे सार हरभजन सिंह इंस्पैक्टर साहब के स्नेही जोड़े इकट्ठे हुए हैं। मैं गुरु साहब के चरणों में अरदास बेनती करता कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणों में निवास दे और अपने पिछले पहाड़ी परिवार को पढ़ा बढ़ने का बात है, क्योंकि बच्चे भी उन्होंने बाहर वो बाहर भी और शिक्षित करके आ नहीं सके। तो सारे परिवार को सद्भावना मिले, क्योंकि बंदे चले जाने के बाद उस बंदे की जरूरत तो गुणों का पता नहीं है। परिवार वालों हुक्म है कि सारे का धन्यवाद जो तुम आए हो, परिवार वालों सारे का एक कदम साढ़े सिर रखा देते और तुम सारे हाथ जोड़ के बेनती है कि लंगर छक के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा। ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹੀ ਸਨ।
ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋਤੀ ਅਮਰੀਨ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ